Yes, Anindita Guha, you can share. You have to unmute, Anindita, if you want to share. Okay, hello. Hanji, Hello. you're audible. Yes, yes, you're Okay, audible. okay, thank you. Hare Krishna, I firstly apologize. My Hindi and English is very bad, but I just want to share something. I'm doing SBC for likely 6 weeks now, and there are many leakage. There are many leakages in, and there are many fears. There are many fears, insecurities, and then after doing SBC and after doing all the BG sessions and reading SP posts, 90% of the fear, that means अकेले रहने का डर या क्या होगा fear about future, that in every aspect of life क्या होगा, तो वो जो डर है वो मेरा सबसे बड़ा डर था कि क्या होगा। पहले वो डर तो चला ही गया, और जो व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल वाला वो हमने कभी फेस किया, कभी हमने फेल भी किया, मैंने कभी फेल भी किया कि ट्रिगर्ड हुआ और उसमें मेरा बहुत लोअर इमोशन का इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर भी अगर आई जस्ट वांट टू से व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजिंग द प्रैक्टिसेस, तो हमारे जो होता है जो फियर है वो तो चला जाएगा ही। और and we have to surrender to माँ। जस्ट थिंक जो होना है होना दो, अभी माँ है तो अभी हम निकल जाते हैं ये काम करने के लिए, तो जो माँ है वो देख लेगी, सिर्फ हमें तो हमारा ड्यूटी करना है। तो वो हमने मेरा प्रोफेशनल जो फील्ड है वहां पे भी अप्लाई किया और वहां पे भी बहुत रिजल्ट मिला मुझको कि जो मैंने जो अगर अप्लाई किया है माँ का नॉलेज, तो बहुत उसमें बहुत फ्रूटफुल रहा है। और जो मेरा एक थोड़ा सा पैरानॉर्मल का इशू था, जो ये था, जो माँ का जो निसिंह मंत्र चैंटिंग है, दिस इज लाइक अ मैजिक, एंड आई वुड से जस्ट like that magic. If and I hear that chanting every day when I'm going to bed in loop, and that fear of that paranormal and is something we're doing, someone is doing anything around me, that fear has almost gone. And till now there is very much lack of self love, and there is some victim consciousness is me, but I'm pretty sure that I can overcome that doing all the practices and with mass blessings. That's all, and I'm very bad at talking, sorry. Thank you, Anindita. That was a very, very good review. So just to let you know, Anindita, like she said, already 6 weeks she is doing this. आप लोग को डिटेल तो नहीं बता सकूंगा, but she is had gone through some very, very difficult situation. Currently, she is also in difficult situation. But जैसे उन्होंने बताया, उनका मेजर 2-3 fear she has already overcome. उनको बेचारा रात को नींद भी नहीं आता है. And she has stopped taking medicines almost I think a month, couple of weeks now, roughly. And No, it is after SBC I had stopped taking pills, and without pills I can sleep 4 or 5 hours in peace without any disturbance, and I was taking pills like 4 or 5 years. My God. So That is after amazing. SBC I just stopped taking pills, and 4 or 5 hours of sleep is enough for a peaceful 4 or 5 hours sleep is enough for me, and that stop taking pills is a major improvement. Yeah, I think that mostly it happened after the second case that Mar did in the PM. Yes, So after yes, the yes, second yes, case, it was yes. even better. After The that, peacefulness yes, increased, right? yes. Okay, very good, Anindita. Thank you so much. Anybody else wants to share like Anindita did?
आई थिंक हर्षिला ने हैंड रेस किया था ना। हाँ हर्षिला, गो अहेड। राधे कृष्णा भैया, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। या आई जस्ट वांट टू शेयर कि जैसे अम्या दीदी ने पॉइंट्स बताए कि हमारे कहाँ कहाँ पे हमारा लीकेज होता है एनर्जी का। तो मोस्ट ऑफ द लाइक मेरे केस में 90% से भी ज्यादा ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड थे जब मैंने स्टार्ट किया था सोल पीस में। मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई थी, बट जैसे जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिसेस सही करना, मैंने एसपी पोस्ट रिविजन करना स्टार्ट किया, मैंने सिंसियरली बीजी सुनना, अपना नोट्स बनाना स्टार्ट किया। देन नोट्स बना के जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करने लगी, देन नाउ मेरे बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं 100% मैं लीकेज सेव कर पाती हूँ या नहीं होता, बट हाँ 70% से ज्यादा जो इनिशियली 0% भी मैं सेव नहीं कर पाती थी, ऑल द टाइम मेरा सिर्फ विकेट डाउन होता था, अब मैं 70 to 75% अपना जो विकेट्स होते हैं वो मैं सेव कर पाती हूँ, एनर्जी सेव करती हूँ ना। नो मच जजमेंटल। अब मेरे सामने कुछ भी रॉन्ग होता है तो एक कंपैशन रहता है कि सामने वाला किसी पेन में होगा या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे हाथ से सिर्फ उसको मैं ब्लेस करती हूँ। और अब मेरी थिंकिंग इतनी चेंज हो गई है कि अब मतलब पहले इनिशियली ये होता था कि मेरे को किसी ने कुछ बोला, लाइक मेरा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में होता था, मैं करने लगती थी। बट अब ये हो गया है कि अब यदि कोई कुछ बोलता भी है तो मैं इजिली अपने मन में ब्लेस कर रहती हूँ। आफ्टर यदि कोई मुझे कुछ इतना ट्रिगर भी कुछ कर अपने मेरे घर पे जो चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो सारी चीजें अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है। मैं अपना मेंटल पीस स्टेबल कर पाती हूँ, जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। सो दैट्स ऑल, लाइक यही मुझे शेयर करना था। वेरी गुड हर्षिला, थैंक यू सो मच। और कौन है? शेफाली दी ने हैंड रेस किया हाँ था। शेफाली, यू कैन शेयर इन समरी। हरे कृष्णा टू ऑल। जैसे सबने बोला, जो पोस्ट था जो अम्या दीदी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, घर में, सबसे ऐसा तो पहले मेरा था जब ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, तब तो अवेयरनेस ही नहीं थी। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट ये अवेयरनेस आई कि ओनरशिप, मतलब ये सब टर्म्स है, तो आई वाज अनअवेयर। बट जब जैसे घर पे आके सब पे चिल्लाना, बाहर वालों से बहुत अच्छे से बात करना, और पूजा जब तक किया तब तक बहुत अच्छा लगता था, फिर आके उसी लूप में गोल गोल घूमना। फिर जब ग्रुप ज्वाइन किया, जब अवेयरनेस आई, जब ये सब टर्म सुना, इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अभी भी होता है, कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाद में ध्यान आता है कि अरे ऐसा था। जैसे माँ कहती है ज्ञान पापी बनना, कि ज्ञान होते हुए भी नहीं अप्लाई कर पाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई, एंड अभी एक ऐसा हो गया है कि एक अलग सी एक स्ट्रेंथ है। अब लगता है कि से पहले बहुत हर बातों में डर लगता था कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या, मतलब जो सिचुएशन नहीं भी है उसको भी सोच सोच के इमेजिन करके डरना। तो ये सब चीजें अभी एकदम खत्म हो गई हैं, डरने वाली कि क्या होगा क्या होगा। अंशिका एक सेकंड प्लीज। तो एक 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 अलग सी स्ट्रेंथ है, मतलब कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो सब मतलब अब वो डर, मतलब जो होगा भी नहीं आता, मतलब वो सोच ही नहीं आती अब कि क्या होगा तो क्या करेंगे। मतलब एक 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 अनडिफाइंड एक स्ट्रेंथ है, ऐसा लगता है कुछ है हमेशा साथ में, एक अलग सी स्ट्रेंथ मिलती है। और जब से एसबीसी शुरू किया, बहुत चेंजेस हुए लाइफ के हर सेक्टर्स में, बहुत चेंजेस हुए। तो यही फीडबैक था। थैंक यू। शेफाली, एकदम रिसेंटली जो आपका पूरा एक बड़ा टेस्ट आया था जॉब लेके, हाँ भैया, और जॉब माँ का ने जो लेके सोल्यूशन ओवरनाइट जैसे विद इन फ्यू मिनट्स माँ ने आपको वहां से मिनट्स, निकाला, वो शेयर करेक्ट। करना चाहते हो? बिल्कुल भैया। ये था कि अभी मैंने नया जॉब स्टार्ट किया, और जो मेरी मैनेजर है एज में तो मेरे से छोटी है, तो मेरे को थोड़ा ईगो आ गया था। उसने बोला कि आप अपना टाइम लो, पहले समझो हाउ वी वर्क। तो कहीं तो मेरे अंदर ईगो, मतलब कहीं तो क्या मेरे अंदर ईगो था कि वो मेरे से छोटी है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है उससे, और मैं शायद ना प्रूव करने वाली जैसे चीज थी। तो उसने बोला टाइम दिया कि आप आराम से पहले समझो हाउ वी वर्क,
उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली काम करना। लेकिन मैंने झटके से देखा और उसके बाद कूद गई अपना से, मैं करती हूँ। तो अगले दिन उसने बहुत जबरदस्त झाड़ लगाई, बहुत ही जबरदस्त। तो बहुत बुरा लगा। मुंह पे तो कुछ नहीं बोला, मुंह पे आई सेड सॉरी, बट अंदर ही अंदर खूब जम के ब्लैक बॉल्स फेंके, उसको फॉरगिव ही नहीं कर पा रही थी। तो आई केम इन रेड। फिर माँ ने बोला, जिसे माँ बताती है कि मतलब कंपैशन वाला तो फैक्टर ही खत्म हो गया था मेरे अंदर से कुछ देर के लिए, मतलब उस पूरे दिन के लिए। उसमें बहुत गुस्सा आ रही थी, बट माँ ने वही बोला कि इमेजिन करो कि उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी दर्द में होगी। देन जैसे माँ ने सब बोलना शुरू किया, तब अचानक से कंपैशन आया कि यार बेचारी दुबली पतली सी है, छोटी सी है, इतने सारे काम है, और मेरी भी गलती थी। पहले मैं ओनली बाहर की रही थी पूरे टाइम, बट फिर रियलाइज हुआ कि यार उसने तो टाइम दिया था, मैं ही जंप कर रही थी अपने आप को प्रूफ, पता नहीं क्या जल रही थी, कहाँ से मैं ईगो ले आई अपना। तो विद इन मिनट्स माँ की नॉलेज से कि उसको हक करो, उसको फॉरगिव करो, और सच में फिर फॉरगिवनेस हो पाई। नहीं तो उससे पहले सिर्फ बड़े बड़े ब्लैक बॉल्स फेंके जा रहे थे हम बैठ करके। बट माँ के बोलने से पता नहीं वो क्या हुआ कि सारा नॉलेज धड़ से सीपन हो गया और तुरंत फिर ग्रीन हो गए। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। तो आप देख रहे हो Thank you, एक्चुअली अलाइनमेंट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप सही एनर्जी में शिद्दत से, जैसे अभिया ने बताया, करो उसे, तो इट इज वेरी वेरी फीजिबल, राइट? ओके, गुड, थैंक यू अभिया अगेन। हाँ बोलिए मैम। हेलो, अरे, मेरी हाँ आवाज मैम। आ रही है भैया? हाँ बोलिए। हाँ, मैं जब भी फॉरगिवनेस साधना करती हूँ ना, इस वाले फॉरगिवनेस साधना में आज सुबह ही किया, तो हंस भी रही थी, रो भी रही थी, और दिल से फॉरगिवनेस मांग भी रही थी, और बड़ा सुकून मिलता है इसको करने के बाद। आज सुबह भी किया तो बड़ी शिद्दत से फॉरगिवनेस हो जाती है इस वाले माँ के गाने के साथ में। थैंक यू सो मच माँ कि आपने इतने अलग अलग तरीके से हमें, अब कैसे फॉरगिव नहीं करोगे तुम किसी को, तो बहुत exactly. अलग अलग वे बना के दिए हैं माँ ने हमें, कैसे बचोगे तुम, नहीं कैसे नहीं कर पाओगे। और ये स्पेशली मैं मेरी बेटी के लिए करती हूँ आई नो नहीं, वेरी गुड, तो वेरी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ उसको फॉरगिवनेस में। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है कैसे लगा आप लोग, कोई एक पर्सन को लेके आप लोग फॉरगिव कर सके आज? सौरभ एम। हाँ सौरभ जी। Yeah, hello. Oh sorry, could you please unmute? सौरभ जी, हाँ Yeah, am I audible now? Yeah, am I हाँ audible हाँ now? हाँ ओके जी हाँ, ये बहुत ही अरे खूबसूरत लगा। एक तो इन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली इस गाने को इन्होंने फॉरगिवनेस साधना में और स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट किया, तो इसमें क्रिएटिविटी देखकर और भी अच्छा लगा इसमें। और हाँ मीन्स मैंने भी आफ्टर द सॉन्ग मैंने जिनको फॉरगिव किया उनके बारे में सोच के एक स्माइल आ गई मेरी। बहुत ही अच्छा लगा इसमें। वेरी गुड, दैट इज ऑलरेडी स्टेप 1 सौरभ जी, वेरी गुड, जी या कीप इट अप, वेरी गुड। और कोई सौरभ जी जैसा किसी के, बिकॉज माँ हर वक्त बस हमारा मुंह में स्माइल लाने के लिए शी विल गो टू एनी लेंथ हम सबको पता है। नीलेश जी। हाँ नीलेश जी बोल। हेलो, यस नीलेश जी, आप अवेयर, आप बहुत दूर से बोल रहे हो, थोड़ा माइक के पास आओगे प्लीज? Yeah, I think I raised my hand by mistake. अच्छा Okay, ओके, no problem. नॉट एन इशू। ठीक है, और कोई नहीं है? सुप्रिया और दी, कोई चैट में कुछ लिख रहे? मैं चैट का एक बार ये चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ, सुप्रिया हम बता सकते हैं। सुप्रिया दी, ओके। हेलो, हाँ जी दी। हरे कृष्णा भैया। ये तो ये वाला और चरण धोरे, तो ये मेरा एकदम की वाला प्रैक्टिसेस में से एक है। जब भी कुछ ऐसा माइंड होता है तो ये दोनों चलता है और बहुत हेल्प करता है मुझे अलाइनमेंट में ये वाली चीज। और एक और चीज भैया मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, बकेट थ्योरी वाला, बट क्योंकि ये आईडी के वजह से मेरे को इसकी सेटिंग समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी। तो मेरा थोड़ा
थोड़ा बीच में मैंने थॉरली पूरा सेशन नहीं सुन पाई, तो क्या मतलब इसका रिकॉर्डिंग हुआ है तो क्या फिर ये शेयर होगा, सो दैट एक बार और मैं इसको देख लूं? आईडी का क्या इशू है इनको, या ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, वी कैन ट्राई टू हेल्प। एक्चुअली क्या, और मेरी पर्सनल आईडी मैंने इसमें ऐड कर रखी है, ये मेरी डॉटर का है, सेम ही मतलब मेरे फोन पे ही है ये, पर इससे करती हूँ तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है और वहां पे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है सेटिंग में, और वो डालती भी हूँ तब भी नहीं हो पा रहा, बार बार ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, और जैसे गेस्ट के थ्रू में वो वाला हो ही नहीं रहा था मेरे से। बच्चे का अकाउंट का होने के बाद ना आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 4 अलग अलग अकाउंट है टीम्स का, बट मैं लॉग आउट कर देता हूँ और देखिएगा बाद में लॉग आउट नहीं हो रहा है तो उसमें एडिशनल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड पर्सनल अकाउंट करके ऑप्शन आता है, फिर आप दोनों अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। वो मैंने किया है, वो है मेरा ऑलरेडी एडेड, पर उस पे हो ही नहीं पा रहा था लॉगिन। आप एक काम कर सकते हो, आप जो हो उनसे बात कर सकते हो, प्रीत से। प्रीत ने भी जो है अभी अपनी डॉटर का प्रोफाइल से ना लॉगिन करके इस वीक अपने आईडी से लॉगिन किया है, सो मे बी शी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। आप पीएनए में करिएगा, वी कैन सॉर्ट दिस आउट। अभी I'll just go quickly and read out the chat का messages IB. Just a bit cognizant of the time. तो there are a lot of chat messages जिनके आए हैं, जैसे सलाबिन मंजू जी ने बोला है कि बहुत अच्छा समझाया माँ ने। शोभा आंटी ने लिखा है कि अद्भुत है, रोम रोम रोमांचित हो गया। हर्षिला दी ने लिखा सुपर ऑसम, आई लव दिस फॉरगिवनेस। अंकिता टंडन ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर। आनंदिता गुहा ने लिखा है मेस्मराइजिंग, रियल फॉरगिवनेस, लव यू माँ। अथर्व ने लिखा है यू जस्ट मेड मी अंडरस्टैंड सो मच इन अ वेरी सिंपल वे एंड आई विल श्योरली ट्राई फॉरगिवनेस विद माय फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू हार्म मी। ये लास्ट पार्ट मुझे थोड़ा सा वो हो गया तो आपको बेटा अब बताओ तो आता हूँ मैं दुर्गा। उसके अलावा भूमिका गुप्ता एंड मनीष ने लिखा है यस इट हैज ब्रॉट स्माइल ऑन माय फेस थिंकिंग अबाउट वन पर्सन, भूमिका दी। अमिया दी ने लिखा है सुपर फॉरगिवनेस सॉन्ग। तनु ने लिखा है अगर मुझे कोई एक व्यक्ति ज्यादा परेशान करता है तो ये फॉरगिवनेस करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है ये फॉरगिवनेस करने से, थैंक यू माँ। सुषमा जी ने लिखा है इट्स अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। संतोषी दी ने लिखा है पहले मैं फॉरगिव नहीं कर पाती थी पर फॉरगिवनेस मुझे सही में माँ ने ही सिखाया है। संध्या दी ने लिखा है कि अंडरस्टूड रियल फॉरगिवनेस ओनली फ्रॉम माँ एंड माय लाइफ हैज चेंज्ड। Okay, so now we have the Sophie's feedbacks. Is Sapna there today in the session? Sapna, आपको क्या सेशन दिख नहीं रही? IB, I'm sorry, I can't see her on the session. Maybe you can read it out. तो स्वप्ना जी ने अपना रिव्यू लिखा है, just read it out. So wanted to share my experience when I was not able to do 16 mala chanting. I got disappointed many times. I tried to do, but some health obstacles kept coming. Then I saw a post which explained importance of each SPC practices and its own importance, and then I started doing it regularly. I was working as IT professional and left job 4 years back. In BG session, Rupali Ma continuously telling us to be independent. So I started thinking of joining job and miracles happened. I got call from my friend that there's a job suitable for you. Are you interested? I was like, I was just thinking and now I have an opportunity. I said thank you to Krishna and appeared for interview and got selected. Now I am able to manage job, home and spirituality. Thank you Soul Peace Group. Thank you Arati. Thank you Rupali Ma for your love, you lot. You are truly doing role of mine every
one's life, right? So yes, I think everybody will, सारे लोग connect कर सकेंगे जो स्वप्न जी share किया है. और बाकी feedback भी आप देखेंगे इसी line में. So many miracles has happened. माँ continuously कोशिश करती रहती है कि हमारे लाइफ में खुशी लाए और हम ट्रूली कृष्णा जी को प्यार कर सके, समझ सके. ठीक है, तो ये स्वप्ना जी का है. आप लोग का कमेंट में जाके यू कैन शेयर whatever you want to do with her. Second वाला जो feedback है, this is from Vishal K. So Vishal, I think you are there online today, right? वो शायद ड्रॉप कर गए हैं, देखा था मैंने. बट वो थे, बट अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं. आप तो हो, आप ही बोल दो. नम्रता है ना, नम्रता. हाँ सॉरी, ही इज इन ऑफिस तो उसने अभी लॉग आउट कर दिया है. ही वाज देयर इन द स्टार्ट. कोई बात नहीं, आप उनका ये जो फीडबैक है ना उसके बारे में आप प्लीज लेट अस नो. कितनी इंग्लिश दोनों में? अच्छा मैं हिंदी में ही बोलती हूँ मैं. चले. राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो विशाल इज माय ब्रदर. तो उनको एक्चुअली में एक स्किन इन्फेक्शन हो गया था जहाँ पे ऐसे लाइक एन एक्सटर्नल केलॉइड जैसा हो गया था पैर में, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे बहुत सेप्टिक जैसा एक इन्फेक्शन हो गया था एंड ही हैड टू अंडरगो अ सर्जरी. ही वाज नॉट एबल टू वॉक एंड ऑल बिकॉज ही हैड इट ऑन नियर हिज थाई बोन. So one of the Fridays when he was in office और उनको जाना था डॉक्टर के पास वो सर्जरी के लिए, जब वो ऑफिस से निकले तब सब ठीक था इन द सेंस कुछ ऐसा बारिश वगैरह नहीं थी. बट आर्य कॉलोनी के वहाँ मुंबई में सडनली बहुत तेज बारिश होने लगी और उनको वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी स्पेशली मिला था बिकॉज कोविड के टाइम पे वो डॉक्टर भी आ रही नहीं थी. बट ऑन रिक्वेस्ट बिकॉज उसका ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए वो मतलब उस दिन का उनको अपॉइंटमेंट मिला था. एंड बिकॉज फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज वो रात को सो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ द पेन एंड एवरीथिंग. तो वाइल ही वाज नियरिंग आर्य कॉलोनी उसका बाइक ब्रेक डाउन हो गया एंड देन ही वाज ट्राइंग बाइक चलाने के लिए बट चला ही नहीं. और वहाँ उसको कोई कैब रिक्शा कुछ मिला नहीं बिकॉज आर्य इज लाइक अ डेंस फॉरेस्ट. वहाँ पे आजू बाजू में कोई गैराज वगैरह भी नहीं था. एंड उसने एक दिन रात को ही पहले वो एक एसपी पोस्ट पढ़ा था जिसमें देयर आर स्टेप्स जो माँ ने दिए हैं इन केस यू आर इन पेन, तो हाउ डू यू इन्वोक हर एंड यू नो देन शी विल कम एंड हेल्प. तो ही जस्ट गेव अप ऑन एवरीथिंग एंड ही जस्ट इन्वोक्ड माय सेइंग आई, मतलब आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम उसको वो अपॉइंटमेंट मिला है और उसको जाना था उस दिन डॉक्टर के पास बिकॉज उसका सर्जरी प्लान था उस दिन वो केलॉइड के लिए. तो फ्रॉम नोवेयर एक बंदा कहीं से तो आ गया, उसने उसको पहले पानी ऑफर किया एंड आफ्टर ही हैड पानी उसके बाद में वो बंदे ने उसको कहा कि 2 मिनट रुको और वही पानी के बॉटल में वो कहीं से तो फ्यूल लेके आया और फिर उन्होंने उसको दिया और कहा कि फ्यूल का इशू है, आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फ्यूल डालो चल जाएगी. और उसने जैसे ही वो फ्यूल मतलब डाला उसके बाद उसका बाइक ठीक हो गया. बाय द टाइम ही एक्चुअली कुड गो टू थैंक द पर्सन ही जस्ट वैनिश्ड अवे. सो when he told me रात को on the phone, both of us were like surprised. हमें नहीं पता who was he, माँ ही थी कोई और था पता नहीं, राधे कृष्णा थे. बट हाँ उसकी वजह से he could reach to the doctor on time और उसका सर्जरी उस दिन हो पाया एंड उसके बाद like he's okay now in the last week's time. So thank you to the group and Rupali Ma and Radhe Krishna. Thank you so much for sharing. So देखिए अगेन कहाँ से हेल्प आ जाता है. एंड देन दिस वाज वेरी वंडरफुली written and thank you Entu. I think Entu is the mentor for Vishal. So this is a very good motivating story and thank you for sharing it with us, Namrata. Thank you so much.